Hello friends, welcome to Kalam IAS Academy. So this is the first discussion of our test which is related to section 1 part A part B. So in this test series Kalam IAS Academy is specifically conducting a test series for 67th BPSC mains political science. Actually the questions and the test series are specially curated as per the BPSC syllabus. So before starting the today's discussion, I would like to request to all those who haven't watched the previously discussed videos. The previous video which I discussed was regarding the answer writing strategy and the detailing of the syllabus, that which points of the syllabus are more important and from where the question are going to be asked in the 67 BPSC mains. So that in that video, I categorically in detail discussed how to approach the answer writing, what should be the structure of the answer, how we should break down the questions into subparts. So in order to justify the core demand of the question as per the 50 marker. Friends, when it comes to write a 50-mark answer in political science, it is very difficult. So there I discuss in detail how to deal in that situation. So before starting the discussion, we are having a Telegram group, Kalam IAS BPSC, Kalam IAS BPSC PSIR. You guys can join that Telegram group where we are posting continuously the important study material and the short notes regarding the PSIR and the GS as well. So this is the first discussion of the first test, which consists of the section 1 part A part B. Part A consists of the Western political thought and the political theories, and the part B consists of Indian government and politics. So here we have given the 12 questions, and those 12 questions are specially curated and picked from the previous year question papers. These are not randomly picked questions, these are strategically designed questions because there are high chances that the question will be from these questions only. In your BPSC mains, when you will write the main examination, I can guarantee you that there will not be a single question which will not be covered by a test series and with vis-a-vis the model answer. So these 12 questions are specially picked from the previous year questions and then put in such a way so that you will get a feel of the exact examination feel. So the first question we are going to discuss is again very important question, and I will say very important question because this is the direct bullet point question which actually BPSC has previously asked as well. So the question is briefly discuss the nature and scope of political science. Also examine why political science is called the master science. So friends, so in that video I discussed how to break the questions. That was a general discussion. Now we will apply that technique into the specific questions and you will get to learn how to execute that particular strategy which I have explained in detail in that previous video. So here the question is briefly discuss the nature and scope of the political science. So here 50 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सब पार्ट्स में ब्रेक करेंगे तो हमसे पूछा क्या गया, ध्यान देना है. मैं बोला आपको पहले ही बोल चुका हूं कि read the question, even if you will get the perception that you get the core demand of the question, even then went on to read the question again and again till 2 or 3 times, because I'm guaranteeing you the more you will read the question, the more in depth of the understanding of the question you will get. So the question here is regarding briefly discuss the nature and the scope of the political science. Also examine why political science is called as the master science. So here, if we will break the question into subparts, it is like briefly discuss the nature. So the first part is the nature. We have to discuss the nature. This is the first part. Second part is the scope. And then also examine. The first part we have to discuss and then second part we have to examine. देखो यार 50 नंबर के क्वेश्चन में अगर आंख बंद करके लिखना है कि भाई नेचर स्कोप एंड all science is a master science, that's a different thing. But if you will have to extract the maximum marks, then you have to justify the keywords of the question like discuss and here is the exam. So there is a difference between discuss and examination. So when we are discussing the things, then we are putting our views of the various scholars, but when we are examining, then we are testifying whether this statement is correct or not. So the argument on the sentence formation will be in that format only. So we are going toward the questions. Briefly discuss the nature and the scope of the political science. So before starting and before jumping to the question, I will tell you that please don't, just after reading the question, don't jump to write the answer. Take few seconds time, 30 minutes, 30 second, 40 second, 50 second times to structurize your answer. In what way you are going to write the answer, in what would be your introduction, what content you will write in your introduction, how will you cover the body part,
how will you divide your body part into various subparts, and then how will you do the comparative and critical analysis, and then how you will conclude the question, and then what are the other parts of the question and how will you justify that question's answer in a proportionate way. Okay, so again here I'm telling you, in BPSC examination 50 marks question is being asked, and then there are different sub question, and each sub question in independently is carrying specific marks. So if you will not justify the independent sections of the question, then you will end up not getting very good marks. Suppose here the question is briefly discuss the nature and scope of the political science, और आप नेचर ही डिस्कस करते चलोगे, स्कोप को आपने कम टाइम दिया, तो यहाँ पे भी बैलेंस गड़बड़ा गया है, आपको प्रोपोर्शनेट वे में आंसर देना है. सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि एग्जामिन द पोल साइंस एज ए मास्टर साइंस, आपने नेचर एंड स्कोप पे ही बहुत पूरे 4 पेज भर दिए, 5 पेज भर दिए, आपने वाई पोल साइंस इज कॉल्ड एज अ मास्टर साइंस, इसको एग्जामिन करने में आपने एक पैराग्राफ 2 पैराग्राफ लिया, तो आपको नंबर उतने ही क्वांटिटी में मिलेंगे, इसने नंबर नहीं मिलेंगे. तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस का आंसर आपको प्रोपोर्शनेट वे में ही देना है, तभी आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज हर सब पार्ट्स का अलग अलग नंबर होता है, और अगर आप सब पार्ट्स को नहीं कर रहे हो तो आप यू आर लूजिंग द मार्क्स देयर. तो इस क्वेश्चन को अगर हमने जैसे ब्रेक डाउन किया कि पहले हमको नेचर डिस्कस करना है, देन हमको स्कोप डिस्कस करना है, और देन उसके बाद में व्हाई वी कॉल पोल साइंस एज अ मास्टर साइंस, तो हमको इस चीज के बारे में भी डिस्कस करना है. ठीक है, सो अ क्वेश्चन इज briefly discuss nature, scope of pol science, and second part is examine why pol science is called the master science. So in the answer, as I have already discussed with you, that we have to divide the question into various subpart. Here, introduction. तो यार क्वेश्चन स्टार्ट जंप करने से पहले ना, क्वेश्चन को आंसर डायरेक्ट लिखने से पहले एक प्रॉपर हमको जो है एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने दिमाग में कि हम किस तरीके से 6 पेज को भरने वाले हैं. इंट्रोडक्शन में यार मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन योर आंसर. फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, and you must have a prepared introduction on the expected topics. So pol science पे यार यहाँ पे पूछ रहा है pol science के बारे में, तो हमको pol science से start करना है. We can start by defining the pol science. Okay, pol science की एक standard सी definition आपको तैयार कर लेनी है. You can directly pick from the model answer that pol science is the branch of knowledge that deals with systematic study of the structure. So this is start from here. The pol science is the branch of knowledge that deals with the systematic study of structure and behavior of the state and political institution through scientific analysis. So हमको pol science define करके introduction देना है. Then however the nature of the pol science has always been contested issue. So this is the filler line, you can use it anywhere, and this is the evergreen line. Suppose there is a question on power, so power को define करने के बाद में power is essentially a contested topic. Similarly justice पे question आया, तो you can say that justice is, there is a huge academic discourse on the nature of the justice, or there is a huge academic discourse on, so you have to use those keyword actually to get the extra marks. You cannot write in a simple language, in a simple word. You have to use those jargons, you have to use those keywords, you have to use the scholars to get an extra advantage in the pol science number. So I'm telling you, introduction is a very important thing. Don't miss, or don't leave the opportunity, and don't miss the opportunity in hitting the sixer in the introduction only, because introduction is the thing which is set the tone of your answer. So here we will first define what is the pol science. Okay, then we can quote the Maitland. What Maitland actually said, कि मैटलैंड ने बोला था यार कि पॉल साइंस को ना, मैं जब क्वेश्चन को देखता हूँ, पेपर को देखता हूँ, तो मुझे आश्चर्य उसके क्वेश्चन से नहीं होता, उस जो लिखा हुआ है उस पर टाइटल लिखा हुआ कि द पॉलिटिकल साइंस. तो बेसिकली ही वांट टू से कि व्हाई वी कॉल पॉल साइंस एज अ साइंस. सो देयर इज अ ह्यूज डिबेट ऑन दैट टॉपिक. ओके, नाउ before starting the thing, we will discuss the nature. Now introduction mein we will define the pol science, and then we will come ki there is a huge academic discourse over the nature and scope of the political science. Various scholar, various theories have their various different views when it comes to discussing the nature and scope. Now we will come on the nature part. We will put a heading, और heading use करने से डरना नहीं है यार pol science में भी, because
50 नंबर के क्वेश्चन में बिना हेडिंग के संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। एक हेडिंग डालने से आपका ना स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा और उस स्ट्रक्चर पे ना वो एक सही तरीके से फ्लो बनता है। तो क्वेश्चन में जब पूछा गया नेचर, तो आप डालो नेचर ऑफ पोल साइंस, एक हेडिंग डालो। देन नेचर 3 तरीके के होते हैं पोल साइंस के। बेसिकली जो डिबेट है कि पहला, सम सेज दैट कि क्या ये फिलोसॉफिकल है नेचर इसका। दूसरा स्कूल बोलता है कि क्या ये हिस्टोरिकल है इसका नेचर। तीसरा बोलता है कि क्या ये साइंस है। सो देयर इज अ डिबेट, मेजर डिबेट गोइंग ऑन अमंग दीज स्कॉलर। इनिशियल लेवल पे, बिकॉज पोल साइंस वाज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी स्टार्टेड बाय since the time of Socrates and Plato, and they give the philosophical ideas, and we all know that Plato is known as the father of political philosophy. So basically, and some says that the entire development of Western political theory is on the ideas of Plato only. Okay, so basically we can say that philosophy, there is a debate that whether it is a philosophical, so nature, whether it is a philosophical nature, whether it is a historical nature, whether it is science nature. उसके बाद में नेचर डालने के बाद में फिलोसॉफिकल हेडिंग डालेंगे। फिलोसॉफिकल पे हम आर्गुमेंट देंगे कि हाउ द नेचर ऑफ ऑल साइंस इज फिलोसॉफिकल, बिकॉज इट डील्स द वेरियस फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, इट डील्स द आइडियाज, इट डील्स विद द वैल्यूज लाइक जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, लिबर्टी, ऑल दीज थिंग्स। and then we can quote the scholars as well, like Plato, and then Lord Bracy, and then John Rawls and Immanuel Kant, various scholars who has enriched the philosophical tradition of the pole science. Then we will come to the historical, we will put a separate heading that whether it is historical or not. In nature में तीसरी हेडिंग, दूसरी हेडिंग में हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में यार डालने के बाद में यहाँ पे उसके बाद में we will explain it a little bit कि because question is asking to briefly discuss the nature, लंबा नहीं लिखना, otherwise you will end up writing it to 7 to 8 pages and taking 45 to 50 minutes, and then you will end up कि आपका पेपर ही पूरा नहीं हुआ। तो ब्रीफ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ब्रीफली डिस्कस पूछा है तो ब्रीफली करना है। हिस्टोरिकल नेचर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किस तरीके से हिस्ट्री हैज बीन अ गाइडिंग role, history has been a guiding force to the political science. So basically Lasky or Machiavelli or Karl Popper and then Julius Caesar and all these events which actually enrich the tradition of political science. So basically history, some scholar says that history is the past pole science and pole science the present history. So these all are the things which we need to explain very briefly in the historical perspective. Then we will come to the science. After medieval age, and specifically after the Renaissance phase, dark age, then comes the Renaissance part, and then हमने देखा कि वहाँ पे किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में एक बेवियरल मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। चार्ल्स मरियम whose book the new aspect of life, and डेविड ईस्टन who is known as the father of behavioralism. तो डेविड ईस्टन के आने के बाद में जिस तरीके से बेवियरलिज्म रेवोल्यूशन का आना हुआ और जिस तरीके से डेविड ईस्टन ने एग्जिस्टिंग पोल साइंस का जो स्ट्रक्चर था और जो कंटेंट था उसको क्रिटिसाइज किया कि ये इट इज नॉट एम्पेरिकल, इट इज फिलोसॉफिकल, इट इज हिस्टोरिकल ओनली, आउटडेटेड आइडियाज के साथ में है, देयर इज नो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, देयर नो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। सो बिहेवियरलिस्ट जो उन्होंने क्या किया कि पोल साइंस को, नेचर को बोला कि यहाँ पे उन्होंने ना फिलोसॉफिकल है ना हिस्टोरिकल है, पोल साइंस का नेचर जो है वो साइंस है। सो पोल साइंस का नेचर जो है साइंस उन्होंने बताया। साइंस में उन्होंने बिहेवियरलिज्म में उन्होंने कई तरीके की बातचीत आई, ठीक है। तो हियर वी आर डिस्कसिंग नेचर। अब यहाँ पे साइंस में, साइंस के बाद में फिर पोस्ट बिहेवियरलिज्म का आता है। पोस्ट बिहेवियरल बोलते हैं कि nature of the political science is not purely science, it cannot be a pure science, it is an applied science. You cannot completely ignore the values also, so we have to take the both the philosophical approach as well and the behavioral approach as well. So that is known as the post behavioralism. Then the nature further evolved, further कैसे evolve हुआ, पोस्ट मॉडर्निस्ट आई। देखो मैक्सिमम लोग इसको यहीं तक आगे छोड़ देंगे, बट इसको फर्दर एक्सटेंड करना है हमको पोस्ट बिहेवियरलिज्म पे। देन पोस्ट मॉडर्निस्ट आए। पोस्ट मॉडर्निस्ट ने बोला कि कोई नेचर वेचर, देयर इज नो परमानेंट नेचर, एंड द नेचर ऑफ ऑल साइंस इंडल्ज ऑल द थिंग्स, एंड देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एवरीथिंग इज अ डिस्कोर्स. So they are basically expressing the incredulity toward the meta narrative. Okay, so postmodernist ने क्या किया? Postmodernist ने nature को बताया कि there is no established or set nature, and the nature is there can be any nature of this discipline. Okay, so that ये portion आएगा आपका किसमें? नेचर में। अब यहाँ पे स्कोप देखेंगे, स्कोप क्या था सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का अगर स्कोप हम देखेंगे तो स्कोप में हमको डिफाइन करना है कि स्कोप किस तरीके से, जैसे कि गार्नर बोलता है पोल साइंस
start and end with state. It says, it shows कि everything which comes under the state comes under the ambit of scope of pol science. सो प्लेटो को जैसे हमने देखा, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. प्लेटो से हमने देखा कि प्लेटो ने किस तरीके से पॉल साइंस के स्कोप में स्टेट की, गवर्नमेंट, फिलोसफर किंग, एजुकेशन, सोसाइटी, देन फैमिली, ये सब प्लेटो ने पॉल साइंस में डील करी. तो इट शोज द स्कोप ऑफ पॉल साइंस, बट हाउ इट इवॉल्व फर्दर. एंशिएंट टाइम पे हम देखें, स्कोप भी पॉल साइंस का इवॉल्व होता गया है. इवॉल्व कैसे हुआ? एंशिएंट टाइम पे क्या था? एंशिएंट टाइम पे प्लेटो, एरिस्टोटल, philosophical things it discuss, okay, ideas. Then medieval time आया, the pol science become branch of religion. थॉमस एक्विनास, ठीक है, इसके अलावा और जितने भी स्कॉलर्स आए, the pol science comes under the influence of church and it become part of religion in the medieval time. So स्कोप में अगर देखें तो स्कोप वाज लिमिटेड बाय द रिलीजन एंड स्कोप वाज अराउंड द रिलीजन ओनली, ओके, बट फर्दर इट इवॉल्व्ड इन द मॉडर्न टाइम. मॉडर्न टाइम पे इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ गया, पर्टिकुलरली आफ्टर मैकियावेली. Machiavelli saved the discipline from the clutches of the religion and introduced the concept of the statecraft, and then Hobbes introduced the concept of sovereignty, and then Hobbes के बाद में फिर डिफरेंट इसके स्कोप को और फर्दर इवॉल्व होना स्टार्ट हुए. तो इनिशियल लेवल पे स्टेट के बारे में डील करता था, देन इसके स्कोप की बात करें तो नॉन स्टेट थिंग्स पे भी इसमें शामिल हो गई, ओके. इसके स्कोप में हमने देखा कि किस तरीके से नॉन स्टेट थिंग में ग्लोबल पॉलिटिक्स, political economics, sociological things, societies related like pressure groups, political parties, social movement, inequalities, political behavior, electoral behavior. So all these things we discuss in the ambit of pol science. So the scope of pol science is evolving day by day, okay. सो वी कैन से कि फर्दर जिस तरीके से क्रिटिकल थ्योरिस्ट आए, फेमिनिस्ट ने बोला कि यार फैमिली भी स्टेट के अंडर में आती है, पॉल साइंस के अंडर में आती है, ठीक है. तो ये इतना ज्यादा मतलब जो स्कोप है इसका डाइवर्स होने लगा कि एक टाइम पे थेडोर स्कोकपुल, यू मस्ट हैव हर्ड कि he had to tell ki she had to tell ki bring the state back into the system, because the scope of pol science diverged so much that there was a fear among the academicians that pol science ultimately will end up losing its core identity. So then the academic discourse started ki please bring back the state into the centrality in the pol science, because pol science is all about the study of the state only. Okay, so this is how the scope we will discuss, and then to conclude, we can conclude that Professor Randir Singh ने बहुत अच्छी लाइन बोली है कि we can conclude by quoting him. Conclusion मतलब इस section का conclusion, इस part का कि pol science is a vibrant discipline with expanding frontier. Okay, so the scope and nature is still evolving and still expanding. Then we will come to the next part of the question. So what is the next part of the question? The next part is why pol science is called master science. So basically we'll start by quoting Aristotle. Your first line should be your punching line. Aristotle called pol science as master science. Various reasons हैं इस चीज की. So put heading reasons. First, इसके कई सारे reasons आप लिखोगे वहां पे कि interdisciplinary. Example, it involve other subject like history, economics and sociology. दूसरा, it is master science. Master science. Master science मतलब कि it is a science which is about the master, which is the ruler, the king or the head of the state. So that is why it is called the master science. Third thing is
methodology. See, as the post Beverly said that ki, the methodology of pole science is not only pure science, it is applied science. So the methodology even more evolved than the science. Here we मतलब हम यहाँ पे जो साइंस में जो अप्लाई होती है मेथोडोलॉजी उनको तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम बिहेवियरल एस्पेक्ट पे भी जाते हैं. सो इसका जो मेथोडोलॉजी है पोल साइंस की वो साइंस से भी ज्यादा बेहतर है. ओके, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, पॉलिटिकल बिहेवियर, ह्यूमन नेचर, and then all the scientific terminology. So that is why the methodology is even more than the science. इसके अलावा पोल साइंस जो डील करती है वो डील करती है what we do in the pole science. We study pole science so in order to understand the society in a better way, so that we can in order to create a peaceful society, a stable society, a harmony and to establish justice. So बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं they will tell you the utopian thing or non-practical thing, but the pole science here we will learn about how we will learn about the life, we will learn about the good life, we will learn about how to evolve the human society in order to make it peaceful and justified. Okay, so यहाँ पे which is most important thing, हम साइंस में क्यों कोई भी इन्वेंशन हो रहा है, मैथ्स में कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ को आसान बनाया जा सके, ह्यूमन लाइफ को रिलैक्स बनाया जा सके, ह्यूमन लाइफ फर्दर डेवलप करे. तो सब कुछ ह्यूमन लाइफ के लिए हो रहा है. पोल साइंस में इज ऑल अबाउट दैट ओनली. Okay, and we directly apply it. So because of all these importance, we can conclude that pole science is a master science. यहाँ पे बार्कर को भी कोड कर सकते हैं हम. यहाँ पे वो बोलता है कि आर्किटेक्टोनिक डिसिप्लिन है, ठीक है, तो आपको स्कॉलर्स पे बहुत ध्यान देना है. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. मॉडल आंसर आपको अच्छे से पढ़ लेना वहां पे. दूसरा क्वेश्चन अपना है So second question, मैं यार पूछा क्या, this is also the question directly picked up from the previous year question, and again there are high chances because since last 2 years they haven't asked question from Aristotle and Plato. So this year there are high chances a question will be either from Aristotle or from Plato, or they can club the both like they have asked done in the previous year. So we have picked this question and they can directly repeat this question as well. So the question is about discuss how different is Aristotle concept of ideal state. So we have to compare Aristotle's concept of ideal state with Plato concept of ideal state. Next part question का है also discuss Plato's statement state is individual writ large. सो अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको दिमाग तुरंत लगाना है कि मेरे को क्वेश्चन पढ़ते ही मेरे को डायरेक्ट आंसर पे जंप नहीं करना है, मेरे को क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना है, अच्छे से समझना है क्वेश्चन के क्या क्या सब पार्ट्स पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस में. उसके बाद मेरे को दिमाग में कैलकुलेट करना है कि किस क्वेश्चन को मुझे कितना वेटेज देना है. उसके बाद में फिर आपको स्ट्रक्चरिंग करनी है कि मुझे इंट्रोडक्शन में कहाँ से शुरू करना है, बॉडी में मैं क्या क्या डालूंगा, कौन से स्कॉलर्स को मुझे यूज करना है, किससे कंपेयर करना है, किससे क्रिटिसाइज करना है, करंट से कहीं लिंक हो रहा है तो नहीं हो रहा है, उसके बाद में कौन कौन से कीवर्ड मुझे डालने हैं. तो ये चीजें आपको उसी टाइम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है एंड यू हैव टू डू इट ओनली इन 1 मिनट. तो आपको ये करने के बाद में देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर. ओके, सो द क्वेश्चन इज अबाउट एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट विद द कंसेप्ट ऑफ एरिस्टोटल कंसेप्ट ऑफ आइडियल स्टेट एंड आपको कंपेयर करना है प्लेटो के आइडियल स्टेट से. तो यहाँ पे करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, हमको इंट्रोडक्शन एक अच्छा लिखना चाहिए स्टेट के बारे में. तो आप क्योंकि स्टेट पे बात हो रही है तो आप स्टेट से शुरू कर सकते हो और आप स्टेट के लिए एक सिंपल सा एक क्लीशे सा इंट्रोडक्शन है, मतलब कहने को क्लीशे है बट वो काफी काम करता है. आप बोल दो कि एज पर द गार्नर पोल साइंस बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट, या गेटल को कोट कर दो कि पोल साइंस इज स्टडी ऑफ स्टडी अबाउट द स्टेट ओनली. ओके, इस तरीके से देन उसके बाद में यहाँ पे आप स्ट्रक्चरिंग करोगे तो स्ट्रक्चरिंग करते टाइम भी आपको एरिस्टोटल और प्लेटो का एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा. बोथ कम्स फ्रॉम द सोफिस्ट ट्रेडिशन और इनका ऑब्जेक्ट क्या था, प्लेटो, एरिस्टोटल इज द डिसाइपल ऑफ द प्लेटो एंड इट इज सेड दैट फॉर एरिस्टोटल philosophy idea sorry Plato is dear but the philosophy is dearer. So basically Aristotle, who was the greatest disciple of Plato, is the one who criticized the Plato maximum.
ओके, सो यहाँ पे एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन कंसेप्शन ऑफ प्लेटोज स्टेट, आइडियल स्टेट एंड एरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट। तो यहाँ पे हम इसमें बस यही करेंगे कि पहले तो दिखाएंगे कि दोनों बोथ कम्स फ्रॉम द ग्रीक एंड दे वांट टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, एंड देन वी विल स्टार्ट बाय कंपेयरिंग बोथ द थिंग्स। ओके, कंपेयर, यार कंपेयर करने के ना दो तरीके हैं। एक तो आप एरिस्टोटल का स्टेट को लिख दो पहले, या प्लेटो के स्टेट को पहले लिख दो कंप्लीटली, देन आप फिर एरिस्टोटल का दिखाओ कि प्लेटो पूरा कंप्लीटली प्लेटो के एरिस्टोटल पे सारे व्यूज लिख दिए, आप एरिस्टोटल के स्टेट पे सारे व्यूज लिख दीजिए बाद में, एंड देन फिर आप जो दूसरे पार्ट पे आइए कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो यार ये तरीका ठीक नहीं है, बिकॉज इट विल नॉट बी दैट मच इम्पैक्टफुल। सबसे बढ़िया क्या होगा कि आप प्लेटो के स्टेट पे एक व्यू देखिए, देन उसको एरिस्टोटल के व्यू से क्रिटिसाइज करिए, देन अगेन प्लेटो का स्टेट पे एक व्यू लिखिए, देन एरिस्टोटल से क्रिटिसाइज करिए उसको, ठीक है। सिमिलरली उसके बाद में ये जो फॉर्मेट है दिस इज मोर इम्पैक्टफुल। तो यहाँ पे और दूसरी चीज मैंने आपको जैसे कल बताई थी अपने डिस्कशन में कि किसी स्कॉलर से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि उस स्कॉलर्स की मेजर थ्योरीज क्या क्या है, और आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि वो सारी थ्योरीज को हम यूज कर लें अपने आंसर में बाय कनेक्टिंग देम विद द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डिफरेंस की, तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज में जहां हमने देखा कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्शन है वो एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट है, और एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंट है। तो मेजर आइडियाज यहाँ पे फिलॉसफर की बात करता है प्लेटो, एरिस्टोटल बात करता है कि लॉ की बात करता है। यहाँ पे ये इसकी स्टेटमेंट दे देंगे हम जो है, यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट दे देंगे लॉ इज द मोर माइटियर और मोर वाइजर देन द फिलोसोफर किंग, एंड देन द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो ऑफ द फिलोसोफर किंग। उसके बाद में इसका फैमिली पे क्या व्यू था, इसका फैमिली पे क्या व्यू था, ठीक है। इसके बाद में इसका जस्टिस पे क्या व्यू था, इसका जस्टिस पे क्या व्यू था, बिकॉज अल्टीमेटली दीज आर ऑल रिगार्डिंग द आइडिया ऑफ स्टेट बेसिकली, ओके, बट वी हैव टू कनेक्ट इट बाय कनेक्टिंग वन सेंटेंस रिगार्डिंग द स्टेट आल्सो। उसके बाद में इसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लाइक इसका मोनार्की था, इसका पॉलिटी था, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप जो भी डिफरेंसेस हैं आप उसको लिखेंगे, तुरंत क्रिटिसाइज करेंगे, और देन उसके बाद में आपको सीधा सेकंड पार्ट में नहीं आना है, आपको बोलना है कि despite having the fundamental differences there are lots of similarities as well, because even though similarities are not being asked but you have to mention the similarities as well। similarities में आपको डालनी पड़ेंगी कि both comes from the sophist tradition, both considered state as virtue, okay, and उसके अलावा both believe in natural inequality, both believe in natural inequality, इसके अलावा और क्या क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटीज थी। सोफिस्ट बोथ स्टेट को वर्च्यू मानते थे, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, ठीक है। तो ये कंपेयर करेंगे एक बार, कंपेयर करने के बाद में फिर सिमिलरिटीज डालेंगे, दोनों की सिमिलरिटीज क्या क्या थी, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आएंगे हम जो है, ठीक है। और इस बीच में हमको स्कॉलर्स भी कोट करने हैं यहाँ पे जो है कि किस किस स्कॉलर ने क्या क्या इनके बारे में बोला है, because without scholar you will not get the good marks। and then the next part is state is individual writ large। इस चीज को डील करते टाइम पे यार अब क्या करना है अपन को, ये डायरेक्ट डालना पड़ेगा। वो पार्ट खत्म हुआ, इसके बाद में ये हेडिंग डालेंगे। हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट जंप कर जाते हैं, हेडिंग नहीं डालते हैं। तो यार हम ये हेडिंग डालेंगे, हेडिंग के बाद इसको बॉक्स में बंद करेंगे in order to show the examiner that look from where our next part of the answer has started। so our task is to make the task of evaluator very easy so that he will not face any kind of difficulty while searching from where you started the next part of the answer। okay, so state is individual writ large। अब यहां पे हमको डालना है कि भाई this statement has been given by the Plato in context of his theory of justice। ओके, तो ये चीज हमको यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में दो फिगर बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल आंसर में नहीं है बिकॉज वो बन नहीं सकती थी, मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ आपको।
ये स्टेट है, ये इंडिविजुअल है। ओके, स्टेट में जैसे कि प्लेटो तीन, इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को आप कनेक्ट करना है बेसिकली हमको यहाँ पे। ये यहाँ पे अपनी कौन सी है, रूलिंग क्लास, ये आपकी सोल्जर क्लास, और ये आपकी गार्जियन, सॉरी, ये आपकी रूलिंग क्लास होगी, ये आपकी सोल्जर क्लास होगी, और ये आपकी प्रोड्यूसर क्लास होगी। सिमिलरली अगर इसको देखें तो ये अपना कौन सा है, इंडिविजुअल लेवल पे थ्योरी ऑफ मेथ ऑफ मेटल से कनेक्ट करना है यहाँ पे हमको जो। तो यहाँ पे ये गोल्ड, यहाँ पे ये सिल्वर, यहाँ पे ये कॉपर। सो प्लेटो इस स्टेटमेंट में ये बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, इंडिविजुअल स्टेट इज द कैपिटल वर्जन ऑफ इंडिविजुअल। If individual is the small letter, state is the capital letter. State, or he basically want to say that the principle of justice which applies at the level of individual, same thing is applies on the state as well. So basically he says that कि एक individual जो है वो, एक स्टेट जो है वो इंडिविजुअल का बड़ा वर्जन है। जो जो चीजें इंडिविजुअल पे लागू होंगी वो स्टेट पे लागू होंगी। इंडिविजुअल का जैसा नेचर होगा वो स्टेट का नेचर होगा। सो बेसिकली इज कनेक्टिंग द इंडिविजुअल विद द स्टेट। सो दिस इज द स्टेटमेंट मींस, आप मोटा आंसर पढ़ लेना एक बार, आपको कीवर्ड्स और इसके सारे जो है एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल जाएगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। सो क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। This was the next question, and also and discuss the relationship between them, and discuss relationship between them. So this is very important question, and I am expecting that this time the question will be asked from this topic, because this is the topic. This question has been directly picked up from the specifically mentioned bullet point of your syllabus. Okay, so here again I am telling you, question there are two parts, define power, authority and legitimacy. Okay, then establish the relation between them. Okay, so यहाँ पे अगेन हमको डायरेक्टली आंसर पे जंप नहीं करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है आपके दिमाग में, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात डालना कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बहुत ध्यान से पढ़ो। उसके बाद में आप देखो सब पार्ट्स में कहाँ कहाँ ब्रेक करना है। उसके बाद देखो कि कितने पार्ट्स हैं, किस प्रोपोर्शन में आपको कितना कंटेंट लिखना है। उसके बाद आप आओ कि इंट्रोडक्शन में आपको कैसे पंच लाइन डालनी है, स्कॉलर डालने हैं, कोट्स डालनी है, बुक्स डालनी है उसकी जो। उसके बाद में बॉडी पार्ट्स में आपको किस तरीके से अपना विजिबिलिटी बढ़ानी है और स्कॉलर्स और कीवर्ड्स का यूज करना है। और उसके बाद में फिर आपको सारे सब पार्ट्स का यूज करते हुए एक अच्छा सा कंक्लूजन लिखना है। ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और उसमें अगर कहीं कंपैरेटिव और क्रिटिकल एनालिसिस का स्कोप है, भले ही पूछना आगे, वो आपको डालना है। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो डिफाइन पावर, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, सॉरी, डिफाइन पावर, अथॉरिटी। ओके, अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट पावर, ठीक है, बिकॉज अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी आर नथिंग बट द फॉर्म ऑफ पावर। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पहले पावर को डिफाइन करना है अच्छे से। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए आपके पास में, पावर का प्रिपेयर्ड होना चाहिए पहले से। घर पे कहीं से भी उठा लो, जहां पे भी आपको, जिस बुक में, जिस नोट्स में आपको अच्छा लगा हो, जिस टॉपर की कॉपी में आपको अच्छा लगा हो, पावर का इंट्रोडक्शन आप उठाओ वहां से। उसके बाद में वो टॉपिक इंट्रोडक्शन डालो कि पावर is a central concept in the political science and it holds the same importance like the money in the economics. There is a huge academic discourse on the nature and the content of the power. Okay, and then you can quote any scholar like Robert Dahl, define power in a relational concept like power is the ability of get the work done despite against their will. So basically this is the introduction, this should be the introduction, or that kind of introduction you should mention. Okay, then power के डिफरेंट यार फॉर्म्स हैं, डिफरेंट व्यूज हैं पावर पे। आपको वो पता होना चाहिए कि पावर पे किस किसने क्या क्या बोला है, ठीक है। पावर पे डिफरेंट व्यूज क्या क्या है। मैकियावेली का पावर पे क्या व्यू है, होब्स का पावर पे क्या व्यू है,
मार्क्स का पावर पे क्या व्यू है कि वन हु कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विल कंट्रोल द पावर। एलिटिस्ट का पावर पे क्या व्यू है। हन्ना अरेंडेंट का पावर पे क्या व्यू है। कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर, पावर is used and resist, when people come together power comes, and when people disappear power goes. So basically C comes from a civic participation scholar. Okay, then Gramsci का पावर पे क्या व्यू है, हेजेमनी की बात करता है। देन प्लूरलिस्ट का पावर पे क्या व्यू है। देन मोनिस्टिक का पावर पे क्या व्यू है। ओके, देन फूको का पावर पे क्या व्यू है। फूको बोलता है कि नॉलेज इज पावर। ओके, सो बेसिकली ही गिव द मल्टी डायमेंशनल और माइक्रो थ्योरी ऑफ पावर। सो फूको का पावर पे क्या व्यू है, मतलब यू हैव एन आइडिया कि फ्रॉम विच डायमेंशंस पावर कैन बी डिस्क्राइब्ड। आपको अपने आंसर में बहुत ही ब्रीफली जितना हो सकता है इसमें से उतना कंटेंट डालना है, और ये इसको खींचना नहीं है, एक एक दो दो लाइन लिखते हुए आपको खत्म कर देना मामला। देन पावर के बाद में आप जो डिफाइन करोगे, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी। यहां पे आपको मैक्स वेबर ने बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जो मैक्स वेबर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पहले अथॉरिटी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम जो है लेजिटिमेसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैक्स वेबर की जो बुक थी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, बुक डिग्री है यार, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो आपको ये यहाँ पे डिस्कस करनी है। इस बुक में वो बेसिकली 3 फॉर्म ऑफ अथॉरिटी बताता है। पहली लीगल इंस्टीट्यूशनल, दूसरी तुम्हारी जो है वो जो बताता है सॉरी पहली बताता है तुम्हारी वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी बताता है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी में लाइक मोनार्क, किंग। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में कल्ट पर्सनालिटी, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी, and apart from that there is some charismatic leader who is having huge hegemony over like present Prime Minister Narendra Modi is also comes under this category. And then third one is legal institutional, like the present bureaucracy. So basically these are 3 kind of authority. Okay, then legitimacy, और वो further बोलता है relationship, हम बात करें relationship की। So legitimacy क्या होती है? Legitimacy is the legitimate power, where power is by force and coercion, but legitimacy is by attraction. Okay, so in legitimacy you need not to force the people, but people by themselves will accept your ideas, your values, your order, and they will think that by following your ideas, by following your order, it will be in their welfare only. So the legitimacy is the legitimate power. Okay, so when it comes to the relation is authority is equal to power plus legitimacy. Okay, रूसो का कोट करना है यहाँ पे। रूसो बोलता है कि कोई भी अथॉरिटी जब तक पावरफुल नहीं हो सकती है जब तक कि वो अपनी पावर को लेजिटिमेसी में कन्वर्ट ना कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है इनके बीच में रिलेशनशिप, और लास्ट में उनको कंक्लूड कर देना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज थ्री, द इंटररिलेशनशिप अमंग द 3 facets ऑफ पावर कंटिन्यूज टू एंगेज द इंटेलेक्चुअल इवन एट द प्रेजेंट टाइम। सो यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम इसमें ये भी डाल सकते हैं हैबरमास का लेजिटिमेसी क्राइसिस। ठीक है, जितना अपने आपको मल्टी डायमेंशनल बनाना है उसको हाईलाइट भी करना है। सो दिस क्वेश्चन इज अबाउट दिस ओनली, तो यू विल फॉर डिटेल यू विल कंटेंट यू विल लुक एट द मॉडल आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज discuss the basic principle of liberalism. Basic principle of liberalism, again very important question. Each and every BPSC is asking question from this topic here. Also highlight the difference between positive and negative liberty, and then next is difference between positive and negative liberty. Okay, so this is the top question.
इस क्वेश्चन में यार ये क्योंकि हमको पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीपीएससी ने बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो अगर हम इसको प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो अगेन बिकॉज वी कैन expect question from liberalism this time as well, so we will be having a prepared introduction or model introduction on the liberalism. Okay, लिबरलिज्म पे एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिख के आना है यहाँ पे हमको। यू कैन रेफर आवर मॉडल आंसर। बिफोर दैट आपको यहाँ पे एक, क्योंकि आइडियोलॉजी की बात है तो क्लॉडे डी ट्रेसी को आइडियोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। क्लॉडे डी ट्रेसी द फादर ऑफ आइडियोलॉजी, हु कॉल्ड आइडियोलॉजी, डिफाइंड आइडियोलॉजी एज आइडियोलॉजी इज द साइंस ऑफ आइडियाज। इसके बाद में यार उसके बाद हम लिबरलिज्म का डालेंगे कि लिबरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सेंट्रलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। सो द कोर कॉन्सेप्ट or the core concern of liberalism is the liberty of individual. So the whole ideology of liberalism revolve around the individual and its liberty. Okay, basically liberalism is a meta ideology which consists of various sub schools. So what are those sub schools? Okay, आपको एक तो तरीका होता है कि लिबरलिज्म के बेसिक आइडियाज आप लिख के आ गई। ओके, लेकिन 50 नंबर का क्वेश्चन यार, और उसमें आपको मल्टी डायमेंशनल बनाना पड़ेगा, तो आपको उसको सब पार्ट्स में बांट के हर एक सब स्कूल्स के फीचर्स डालने पड़ेंगे सो आपको एक अच्छा स्कोर मिल सके। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म के वेरियस स्कूल्स होते हैं। लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, neoliberalism and then social liberal। ठीक है, इनके स्कॉलर आपको डालने हैं जॉन लॉक, एडम स्मिथ, यहां पे आपको स्कॉलर डालना है लास्की, ग्रीन, गेलब्रेथ, यहां पे डालना है नोजिक, हाइक, फ्रीडमैन, यहां पे डालना है आपको अमर्त्य सेन, रॉल्स और डोरकिन। इसके अलावा इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, ये वाली फिगर ड्रॉ करने के बाद में इसके बाद में आपको फीचर सबके लिखने यार, बड़ा आंसर यार लिखना पड़ेगा आपको। सपोज दैट क्लासिकल लिबरलिज्म, अब इनके प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, इनके आइडियाज क्या कहते हैं ऑन इंडिविजुअल, ये क्या बात करते थे, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की बात करते थे। कीवर्ड लिखने यार, ये एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, आपको मतलब एक डायमेंशन पता होनी चाहिए और उस डायमेंशन पे आपको एक्सप्लेन करनी है चीजें। इंडिविजुअल पे क्या व्यूज है, सोसाइटी पे क्या व्यूज है, मार्केट मॉडल ऑफ सोसाइटी की बात करते थे ये। स्टेट पे क्या व्यू है, स्टेट मिनिमल स्टेट, नाइट वॉचमैन स्टेट। ठीक है, इसके अलावा इनका फिर आप आ जाइए वैल्यूज पे, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, देन जस्टिस पे क्या व्यू था इनका, देन इक्वलिटी पे क्या व्यू था इनका, देन राइट पे क्या व्यू था इनका। ठीक है, एक बार ये डिफाइन करने के बाद में सो बेसिकली व्हाट आर दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म कि इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए। बट अगर आप इनको ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो यू आर गिविंग क्लियर पिक्चर टू द एग्जामिनेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, सिमिलरली आप क्लासिकल लिबरल, मॉडर्न लिबरल वेरी ब्रीफली आपको डिस्कस करना है, देन सोशल लिबरल, देन आपको जो है न्यू लिबरल, देन आपको सोशल लिबरल। ठीक है, hence you can discuss the basic principle of liberalism and then you will come to the second part of the question। second part of the question पे आप जब आओगे तो अगेन आपको वो फॉर्मूला याद रखना है कि आपको हेडिंग डालनी है the two concept of liberty, two concept of liberty। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी को आप जब डिस्कस करोगे तो आपको क्लियरली आपको समझाना है कि व्हाट इज मीन। आप पॉजिटिव लिबर्टी डिस्कस कर रहे हो तो पॉजिटिव लिबर्टी हेडिंग डालो, नेगेटिव लिबर्टी डिस्कस कर रहे हो तो नेगेटिव लिबर्टी हेडिंग डालो।
नेगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट कौन है, पॉजिटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट कौन है, टीएच ग्रीन, लॉक और न्यू लिबरल वाले बंदे हो गए, और आपका ये जो है क्या नाम है इनका, इज़ाइया बर्लिन, इनके बारे में लिखना है आपको, एग्जांपल्स के साथ लेना है। बहुत लोगों को पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी में डिफरेंस नहीं पता होता है। पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी मींस कि द क्लासिकल लिबरल्स व्यूज कि देयर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्टेट, देयर इज नो रिस्ट्रेंट, okay, so that is negative liberty. Your individual is free to do whatever you want to do. So basically what George Sumner says that individual a person is in the gutter where he ought to be, okay, but यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई बंदा है वो पुल पे जाके आत्महत्या करने जा रहा है, नेगेटिव लिबर्टी वाला क्या बोलेगा कि भाई जा रहा है तो जाने दो, मरेगा मरेगा उसका काम है, वो दारू पी के अगर नाली में गिर रहा है तो वो क्योंकि बिकॉज ही डिजर्व दैट इज व्हाई ही इज डूइंग दैट, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, ये उसकी लिबर्टी है। बट ये दिस इज नेगेटिव लिबर्टी कि स्टेट हैज नो रोल, इंडिविजुअल इज कंप्लीटली फ्री, ओके। एंड देन व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाट इज मींस द पॉजिटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है स्टेट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर सो दैट यू कैन एंजॉय योर लिबर्टी, ओके। फॉर एग्जांपल कि स्टेट आपकी कैपेसिटी बिल्ड करेगा, मतलब कि स्टेट आपको जो एजुकेशन प्रोवाइड करेगा फ्री में, ताकि आप जो एजुकेटेड होकर अपनी लिबर्टी आप कैपेबिलिटी बिल्डअप कर पाए, आप स्टेट आपको फ्री में हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगा, स्टेट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, सो फंड दीज स्टेट डीपीएसपी प्रोवाइड करवाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। सो पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि स्टेट विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर सो दैट यू विल एंजॉय योर लिबर्टी एंड स्टेट विल डेवलप योर कैपेसिटी, बेसिकली दे बिलीव इन द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द स्कॉलर्स हु कम्स अंडर दिस कैटेगरी जॉन रॉल्स, Amartya Sen, Dworkin, and all the later scholar, okay, Joseph Stiglitz. So this is the basic concept of liberty. So that's all about, and then you can conclude ki, and then also here you have to write the critique of the liberalism by the Marxist school of thought as well, very briefly even though, but you have to mention that to make your answer more comprehensive and more dynamic, okay. So the next question is question number 5. So the question number 5 is discuss the main characteristic of ancient Indian political thought. Discuss the main characteristics of ancient Indian political thought. ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन अगेन a couple of times this question has been asked by the BPSC and there are high chances ki somewhere they will ask this question, if not that year then in the next year, but there are high chances ki this question is going to be asked very soon, okay. So you cannot take the risk of leaving this question, so we have categorically deal with this question in our model answer. You can completely rely on the content which we have provided in our model answer, okay, and the model answer is available free on our Telegram channel, okay. So discuss the main characteristics of the ancient Indian political thought. Even though the question seems very short, but you have to write a 50 marker answer, so you have to cover up those 6 pages, and for that you must be knowing what can be the structure of this answer, okay. So again I am telling you, I am applying all the tricks and techniques which I have explained in my first videos, that what should be the approach, ideal approach of answer writing. Now I am applying and I am executing that tricks and techniques by in a specific question. So the question is डिस्कस द मेन फीचर ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दोस्तों यार क्वेश्चन पढ़ने में बहुत छोटा है, आपको लगेगा कि 6 पेज का आंसर कैसे लिखा जाएगा, बट देखो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम पॉलिटिकल थॉट को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल थॉट, ओके। एक पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस में किसी भी एरिया के पॉलिटिकल जो आइडियाज होते हैं विच डील्स अबाउट द पॉलिटिक्स, इट्स बिहेवियर, इट्स ऑब्जेक्टिव, इट्स गोल, एंड दीज ऑल आर पॉलिटिकल थॉट्स, okay. Then we will discuss ki there are basically 2 dominant political thought in political science, the western political thought and Indian political thought. उसके बाद में हम देखेंगे किस तरीके से इंडियन पॉलिटिकल थॉट हेडिंग डालेंगे, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे हम यहाँ पे डाल सकते हैं, मैक्स मूलर को कोट कर सकते हैं, इंडोलॉजिस्ट हु सेज दैट कि nowhere in the world the society or the political thought has dealt with the question related to life as the Indian political thought, okay. So Indian political thought के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके बाद में इंडियन पॉलिटिकल थॉट इंस्पिरेशन कहाँ से लेता है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। तो सोर्स आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वेदास, स्क्रिप्चर like Gita, Mahabharata,
अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, स्मृति एंड अरण्यक एंड ब्राह्मणा, बुद्धिज्म टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट। दीज आर द सोर्सेस। आपको ये फिगर बतानी पड़ेगी। उसके बाद में वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, फीचर्स में आपको मेजर फीचर्स डालने पड़ेंगे कि धर्मा पे हम क्या बात करते हैं, दंड पे हम क्या बात करते हैं, राजधर्म पे हमारा क्या विचार है, स्टेट क्राफ्ट पे क्या विचार है। ठीक है, इसके अलावा अनदर फीचर है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी बिटवीन द वेरियस थिंकर्स, वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स, लाइक अर्थशास्त्र आया, फिर उसके बाद में आपका जो है शुक्र नीति आई, दंड शास्त्र आया, ठीक है, कमंडक का शुक्र नीति सार आया। देयर इज अ कंटिन्यूटी। उसके अलावा हम और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख सकते हैं कि रिलीजन एंड एथिक्स पे क्या व्यू था, इंटररिलेटेड थे। उसके अलावा ड्यूटी वर प्रेफर्ड ओवर राइट। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि प्रैक्टिकलिटी पे हमने कैसे चर्चा करी, और द रियलिज्म, रियलिस्ट व्यू, लाइक मंडल थ्योरी, स्टेट क्राफ्ट डील कैसे किया हमने, जो है सप्तांग थ्योरी, स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज क्या थे हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या डाल सकते हैं, मोनार्की, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, स्टेट को हम जो है एज ए मीन्स लेते थे, मीन्स टू व्हाट, टू अटेन धर्मा, टू प्रोवाइड हैप्पीनेस। ठीक है, so state was not an end, state was means to attain the various goals and objective to create peaceful society and rich society. What are the other, like welfare state की बात हम करते थे। ठीक है, बुद्धिज्म में हमने देखा किस तरीके से रिपब्लिक की बात करी गई। ठीक है, तो दिस बेसिकली वी हैव टू डिस्कस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट। उसके बाद में ये करने के बाद में और आंसर हमारा यहीं पे खत्म नहीं हुआ यार, हमको क्या करना है ना, इसके बाद में यही खत्म करके आओगे, एग्जाम में नंबर नहीं देगा। हमको क्या करना है इसके बाद में, इसके बाद में हमको डालना है कंपैरिजन, बिकॉज पूछा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, कंपैरिजन विद, नहीं कंपैरिजन नहीं, क्रिटिक डालना है पहले तो, क्रिटिक ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अब क्रिटिक में स्कॉलर डालने हैं, वेस्टर्न स्कॉलर कि भाई आइडियलिस्टिक था, स्पिरिचुअलिस्ट था, डिवॉइड ऑफ रियलिज्म था, ऐसा बोलते हैं। जॉर्ज स्टनहम को कोट करना है, हु सेज दैट कि जॉर्ज स्टनहम ने क्या बोला था कि इंडिया लैक्स स्ट्रेटेजिक कल्चर। हियर we only deal with the spirituality and theocracy, we do not deal with the realism and the practicality of the life. Okay, so these are the major criticism of the Indian political thought. And then उसके बाद में फिर हमको यही नहीं करना है, कंपेयर करना है हमको with western political thought, though we have to do it very briefly but we have to do it as well. Okay, western political thought के साथ में कंपेयर करना है, और उसके बाद में कंक्लूड करना है। कंक्लूड करते टाइम पे एक स्कॉलर और डालेंगे, कोई भी डाल सकते हो आप, एडवर्ड सैड, ओरिएंटलिस्ट। ठीक है, वी आर मेहता। आपको उस तरीके से स्कॉलर के साथ में कंक्लूड करना है इस चीज को जो है। ओके, और इस तरीके से हम 6 पेज का एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, so the last question is, what do you mean by political obligation? Again, very important question. See, there is not a single question which I have put just for the sake of asking the question. There is a proper strategy and idea behind putting the question in your test series. And these questions, please understand the gravity of the situation. These questions are very important. So the question is, what do you mean by the political obligation?
पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन से आप क्या समझते हो, और आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स फॉर रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स फॉर रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन, रेजिस्टेंस एंड रिवॉल्यूशन। ओके, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, देयर हाई चांसेस, क्योंकि आप अपने सिलेबस को उठा के देखोगे, देखा कभी सिलेबस आप लोगों ने, देख लिया करो यार सिलेबस भी थोड़ा सा, बिकॉज सिलेबस नहीं देखोगे तो इट्स लाइक प्लेइंग अ फुटबॉल मैच वेयर देयर इज नो गोल पोस्ट, यू आर जस्ट ड्रिबलिंग द फुटबॉल, यू डोंट नो कि वेयर टू पुट इट इनटू। ओके, सो सिलेबस देखोगे, सिलेबस इज द गाइडिंग लाइट, सिलेबस इज लाइक अ बाइबल फॉर यू पीपल, एंड यू कैन इजीली प्रेडिक्ट व्हाट क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क दिस ईयर। ओके, सो नेवर ever take the risk of leaving the syllabus, okay, because by putting the syllabus at one side and putting the previous year question paper at the another side, and then you will get to know ki from this part of the question which question is asked in which year, and then you can predict which question is gonna ask in the next attempt। okay, so this is how you need to do the analysis। इसके लिए आपको करना है क्या यार कि व्हाट इज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की आपको इंट्रोडक्शन अगेन तैयार करके जाना है। आप इंट्रोडक्शन हमने बहुत अच्छा अपने मॉडल आंसर लिख रखा है, आप उसको उठा के डाल सकते हो कि पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन क्या है। ठीक है, इसके साथ आपको टीएस ग्रीन की बुक का एक कोट करनी है, द लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। बेसिकली आफ्टर दैट द पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन एज अ टेक द कंक्रीट से। ओके, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि बेसिकली टू ऑब्लाइज द स्टेट और टू ओबे द स्टेट, टू ओबे द रूल ऑफ लॉ in order to create rule of law। okay, so basically the objective is to identify where the power lies and how to establish the obligation among the state। okay, so there are various political obligation की various theories हैं यार, अब उन theories को भी आप तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। फर्स्ट इज theory of unlimited obligation, दूसरा theory of लिमिटेड ऑब्लिगेशन, तीसरा नो ऑब्लिगेशन। ओके, इनकी भी डिफरेंट थ्योरीज हैं। इनमें अगर बात करो तो पहली वाली है थ्योरी ऑफ फोर्स मजूरे। ये बोलते हैं कि स्टेट इतना पावरफुल है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपको यू हैव नो एनी अदर ऑप्शन बट टू ओबे द स्टेट, बिकॉज इफ यू विल नॉट ओबे द स्टेट यू विल बी एट द हार्म। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ फोर्स मजूरे। इसी में सेकंड है तुम्हारी कंजर्वेटिव थ्योरी, कि कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट जाके बोलते हैं कि यार अगर आप स्टेट को ओबे कर रहे हो और स्टेट को ओबे नहीं कर रहे, तो दोनों ऑप्शंस में आप स्टेट को ओबे कर रहे हो तो ये आपके लिए फायदेमंद सिचुएशन है, ना कि वो आप स्टेट को ओबे नहीं कर रहे। सो बेटर है कि स्टेट को आप ओबे करो। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ दिस कंजर्वेटिव व्यू। द थर्ड वन इज डिवाइन राइट थ्योरी। डिवाइन राइट थ्योरी का मतलब है कि स्टेट हैज द डिवाइन ओरिजिन, स्टेट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, एंड यू हैव टू वर्शिप द स्टेट द वे यू वर्शिप योर रिलीजन, द वे यू वर्शिप द गॉड, एंड देयर इज नो ऑप्शन टू रेजिस्ट, टू रिवोल्ट। ओके, सो दिस बेसिकली कम्स अंडर द थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। देन कम द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ लिमिटेड पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसमें हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो भी स्कॉलर्स हैं उनको देखा कि किस तरीके से इंडिविजुअल स्टेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और इंडिविजुअल ने अपनी लिबर्टी जो है स्टेट के लिए दे दी, स्टेट उसकी कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, बदले में इंडिविजुअल लिमिटेड ऑब्लिगेशन स्टेट को प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें आप यहाँ पे लॉक, हॉब्स, रूसो को डाल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो नो राइट टू रेजिस्टेंट, बट यहाँ पे देयर वर फ्यू राइट, फ्यू occasion where individual or where the society can revolt। the third one is no obligation। no obligation में कौन कौन से आते हैं यार? मार्क्सिस्ट तो बोलता है कि स्टेट के रिवोल्ट करो, नो नीड ऑफ स्टेट, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है। अनदर वन इज एनार्किस्ट। एनार्किस्ट बोलते हैं स्टेट इज अननेसेसरी एविल। ओके, स्टेट की जरूरत ही नहीं है। गांधी हो गया, क्रोपोटकिन, प्रोधान, these are the famous scholar of the anarchist। okay, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा this basically how these are the most important theories of political obligation। और अगर आप स्कॉलर्स की बात करो तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के स्कॉलर में हमने देखा कि प्लेटो कैसे बोलता है कि स्टेट इज सोर्स ऑफ वर्च्यू, सोक्रेटिस जो who choose not to revolt but to drink the hemlock in order to show its political obligation toward the state। Then Plato, who was the disciple of the Socrates, says that ki state is source of virtue, similar views of the Aristotle as well। However,
लेटर ऑन हमने देखा कि किस तरीके से हीगल ने बोला कि स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वो कंप्लीट और उसके कंप्लीट पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की बात करता है। इसके अलावा हमने देखा कि टी.एच. ग्रीन again political obligation, state hinder the entrances, okay, and he says that ki human consciousness postulate liberty, liberty demand right, and right needs the state. So basically they were saying ki state is the very important entity and we have to oblige the state. इसके बाद हमने देखा कि होब्स और मैकियावेली, लॉक, रूसो, इन सब के क्या क्या व्यू थे, तो ये हम डाल सकते हैं वहां पे। मार्क्स का, तो ये इस तरीके से हम जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन वाले पार्ट को कंसेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट है वेरियस कौन कंफ्यूजन की सर नेक्स्ट पार्ट को कैसे डील किया जाए। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है वो आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्स टू द रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन। तो रिस्पॉन्स, ये हेडिंग डालनी पड़ेगी यार हमको, रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस एंड रेवोल्यूशन। इसमें एरिस्टोटल, प्लेटो, नो रेजिस्टेंस, मैकियावेली जो रेजिस्टेंस था किस केस में था कि कहां स्टेट जो डालना है, होब्स अगर सिक्योरिटी नहीं कर पाए स्टेट तो दे कैन रिवोल्ट। सिमिलरली आपका जो है मार्क्स, रिवोल्ट, गांधी, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट। सो दीज वर द रिस्पॉन्सेज टू द resistance, okay. So basically this is how you have to deal with this political obligation wala part, okay, and then you have to conclude it in a proper way, ठीक है। तो इस तरीके से अपना जो है सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। होपफुली यू विल लाइक द डिस्कशन एंड आपको कुछ कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो ये जो 6 क्वेश्चन है यार, ये 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, अच्छे से ये आप इनके मॉडल आंसर पढ़ो, आप टेस्ट सीरीज में लिखो, उसके बाद में वी विल चेक की वेयर द थिंग्स आर लैगिंग, व्हाट इज द फ्लॉज इन योर स्ट्रेटजी इन आंसर राइटिंग, एंड देन वी विल गिव यू द प्रॉपर फीडबैक। एंड जो बच्चों जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है वो आप जो है we will do the face to face evaluation, you can directly meet us and we will tell you in front of you also only where the things are going wrong, okay. And then these again I'm telling you these 6 questions are most important question and you will get 2 to 3 questions directly in your paper there, okay. So model answer are very good, the content is enriched, so you can depend on the model answer also, okay. So in next video we will discuss the next part, the remaining 6 question of part B, Indian government and politics. So for today, thank you very much. Welcome to the second part of the discussion. So in the first part, we have discussed the part A of our test 1, which consists of Western political thought and Indian political theory, where we have discussed the 6 questions in a very good amount of depth, and then you can refer the model answer for the further clarification. And now we are going to discuss the second part, part B of our test 1, which consists of Indian government and politics. So the first question or the question number 7 is, critically examine the role of governor in India's cooperative federalism. So please read the question very carefully. The question is critically examine. So this critically examine is the key. Critically examine the role of governor. Role of governor बहुत important है. इसको ये आपके GS2 में भी पूछा जाएगा, ये आपके पॉल साइंस में भी पूछा जाएगा, इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना. Role of governor in India's cooperative federalism. In India's cooperative federalism. Okay. Do you think that the institution of governor should be abolished? So this is the first question, and the second question in this question only, ki, do you think that the institution of governor abolished? So what should be the strategy of writing the good answer of this question? So again, करना कि आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, 2-3 बार ध्यान से पढ़ो, 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर एक्चुअल में पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सो द कीवर्ड इज क्रिटिकली एग्जामिन। अब आपको रोल ऑफ गवर्नर इन इंडियाज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके। सो यहाँ पे आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है अच्छा सा कि भाई इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वेयर द गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, ओके। And then you have to define the cooperative federalism as well.
ओके, क्योंकि बिकॉज दिस इज द अगेन वन ऑफ द कीवर्ड, तो कोऑपरेटिव फंडामेंटल्स को डिफाइन करो। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑल साइंस के आंसर लिखते टाइम पे, स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स, इफ यू आर नॉट यूजिंग द आर्टिकल्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन देन यू आर मिसिंग अ very key link to enrich the marks in your answer. Okay, so you must memorize the important article related to the governor. Okay, so इस क्वेश्चन में आपको जो की इंग्रेडिएंट है वो क्या क्या डालने हैं यार, मैं वो आपको बता रहा हूं। आर्टिकल्स रिलेटेड टू गवर्नर, देन स्कॉलर्स व्यू, कि पॉल ब्रास, ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, कमेटीज रिकमेंडेशन, सेकंड ARC, ओके, NCRWC, पुंछी कमीशन, राजा मन्नार कमेटी, जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, VP सिंघल, RC कूपर, हरगोविंद वर्सेस तिलक, और भी जितनी भी जजमेंट है रिलेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट, यार आपको ये सब डालनी पड़ेगी। ओके, और अगर आप ये नहीं डाल रहे हो तो फिर आपका और ऐसा बोमई जजमेंट, अगर आप ये नहीं डाल रहे हो तो आप बहुत ही रॉ टाइप का आंसर लिख के आओगे और उस पर नंबर नहीं मिलने वाले यार। आपको लगेगा अच्छा फील करके कि मैंने यार 6 पेज भर दिए हैं, मैंने आंसर लिख दिया, मस्त नंबर आएंगे मेरे। दोस्तों से बोलोगे कि आई विल गेट वेरी गुड मार्क्स, बट द डे रिजल्ट विल बी आउट, यू विल डिसअपॉइंटेड इफ यू आर मिसिंग ऑन दैट पार्ट। ओके, सो दीज आर द वैल्यू एडेड मटेरियल। कोई भी IGP का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नहीं लिख रहे हो, आप स्कॉलर्स व्यूज नहीं लिख रहे हो, आप थ्योरी से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर नहीं लिख रहे हो, आप कमेटीज की रिकमेंडेशन नहीं डाल रहे हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली यार इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन की पूरी स्ट्रेटेजी अपनी यही है IGP वाले पार्ट की, कि ये चीजें अपने आंसर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ गवर्नर। ओके, तो रोल ऑफ गवर्नर में क्या डालेंगे, पहले तो हम रोल ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव रोल, ठीक है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल रोल, ठीक है। इसके बाद में क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कंट्रोवर्सीज क्या रही हैं, डिस्क्रिशनरी पावर, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी रही है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और क्या क्या डाल सकते हो क्रिटिकली एग्जामिन में, रोल ऑफ गवर्नर, आप क्या किस तरीके से एग्जीक्यूटिव में क्रिटिकली एग्जामिन कर दो, लेजिस्लेटिव में कर दो, फाइनेंस में कर दो, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल डाल दो, असेंट टू द बिल, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज हो गया, ठीक है, आर्टिकल 356 का मिसयूज हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका किस तरीके से एग्जाम्पल्स डाल दो, 2004 में बूटा सिंह जो गवर्नर थे बिहार के। एक चीज और बताना भूल गया आपको, जैसे ही क्वेश्चन आता है ना उसमें आपको बिहार का एंगल भी डालना होता है। अगर आप बिहार का एंगल नहीं डाल रहे हो तो अगेन आप जो है कुछ ना कुछ अधूरा छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। देन उसके बाद में आपको क्या लिखना है, डू यू थिंक दैट द रोल ऑफ गवर्नर शुड बी अबॉलिश्ड। तो ये आपको एक अलग क्वेश्चन का पार्ट है, इस क्वेश्चन की अलग से हेडिंग डालनी है कि द रेलेवेंस ऑफ द रोल ऑफ गवर्नर। ओके, सो फिर आपको डालना है स्कॉलर्स व्यू कि भाई सरकारी कमीशन ने बोला है, सीमा चिश्ती एक स्कॉलर है उन्होंने बोला, या सोली सोराब जी की एक बुक है द सैबोटेज, उनकी एक बुक का नाम है द गवर्नर सेज और सैबोटियर। ओके, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि गवर्नर, इफ देयर इज अ गुड गवर्नर देन द गवर्नर विल बी गुड, इफ द गवर्नर इज अ बैड पर्सन देन द गवर्नर विल बी बैड। ओके, और या फिर इसके अलावा पॉल ब्रास बोलता है गवर्नर इज द एक्सटेंडेड हैंड ऑफ द सेंटर टू द स्टेट विद अ वेलवेट ग्लव विद एंड द आयरन फिस्ट।
ठीक है। और सरकारी कमीशन बोलता है कि द गवर्नर इज द लिंचपिन ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। दिस शुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस आंसर, okay, because here you are linking the governor with the cooperative federalism as asked in the question by quoting the recommendation of very important committee, that is Sarkari Commission. So that is the apt introduction for this question. The governor is the linchpin of the cooperative federalism in India. Okay, तो उसके बाद में आप आर्गुमेंट दोगे कि नहीं भाई गवर्नमेंट की जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इंडिया एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप इंपॉर्टेंस दिखाओगे कि इट विल ब्रिंग द नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव एट द स्टेट लेवल। एट द सेम टाइम सेकंड आपका जो इंपॉर्टेंस है कि इट विल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट द एक्टिविटीज एंड द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है। सो बेटर टू बी रिफॉर्म। देन आपको यहाँ पे फिर वे फॉरवर्ड भी डालना है। वे फॉरवर्ड में रिफॉर्म क्या क्या होना चाहिए, तो रिफॉर्म में किस कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशन रही है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट डाल दी, या फिर डाल दिया कि सुप्रीम जो गवर्नर का जो रिमूवल है दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी, देयर मस्ट बी सम कंक्रीट ग्राउंड, 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, ठीक है। और या इसके अलावा अपॉइंटमेंट के टाइम पे हमको जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, या फिर जैसे कि पुंछ कमीशन बोलता है कि इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा जो है एक पूल ऑफ बंदे बना लिए जाए, वहां से गवर्नर लिए जाए। तो आप इस तरीके से वे फॉरवर्ड डाल के अपने आंसर को एंड करोगे विद सम वैल्यू एडेड कंटेंट। सो दैट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज पे, यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यार अपना कि टू व्हाट एक्सटेंट इट इज अप्रोप्रिएट टू सजेस्ट दैट 73rd अमेंडमेंट एक्ट इज हाफ बेक्ड केक। सो क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट इट इज अप्रोप्रिएट टू कॉल्ड 73rd अमेंडमेंट एक्ट एज हाफ बेक्ड केक। सेकंड पार्ट क्या है, सब्सटेंशिएट योर पॉइंट ऑफ व्यू विद रिलेवेंट एग्जांपल। ओके, रिलेवेंट एग्जांपल के साथ में सब्सटेंशिएट करना है। सो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अबाउट आस्किंग द वीकनेसेस इन द पंचायती राज सिस्टम। आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो वीकनेसेस इन द पंचायती राज सिस्टम पूछ रहा है, तो आपको क्योंकि पंचायती राज इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ो, उसके बाद सब पार्ट्स में ब्रेक डाउन करो। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको वीकनेस, तो आप किसको किस तरीके से 50 नंबर का आंसर लिखोगे। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना क्या है कि पहले क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में पंचायती राज का रिलेवेंस दिखाना है आपको। रिलेवेंस पंचायती राज का दिखाने के बाद में उसमें क्या क्या उसके फीचर्स रहे हैं, फीचर्स के बाद में फिर आपको दिखाना है वीकनेसेस क्या कह रही है, कि यू हैव टू शो कि हाउ इट इज अ हाफ बेक्ड केक। हाफ बेक्ड केक का मतलब आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में वीकनेसेस में आपको फिर अगेन कमेटी की रिकमेंडेशन, लाइक मणिशंकर अय्यर कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल और अदर कमेटी की रिकमेंडेशन, बिहार का एंगल, ये चीज आपको डालनी पड़ेगी। वीकनेसेस, फीचर्स, देन वीकनेसेस, देन व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, ओके। एग्जांपल्स के साथ आपको चीजें डालनी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यार इंट्रोडक्शन लिखो शानदार। पंचायती राज सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। इट इज बेसिकली एम्ड एट गिविंग और इट इज बेसिकली एम्ड एट एम्पावरिंग द पावरलेस एंड गिविंग वॉइस टू वॉइसलेस, ओके। इस तरीके से प्लीज बहुत ही शानदार सा जार्गन्स के बड़ा हुआ इंट्रोडक्शन आपको डालना है। देन इंस्पायर्ड पीआरआई बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ गांधीयन स्वराज, एमएन रॉय, रेडिकल डेमोक्रेसी, दीनदयाल उपाध्याय, अंत्योदय, ठीक है। ये वाली फिगर ड्रॉ करने के बाद में, ये वाली फिगर देख लीजिए, ये वाली फिगर ड्रॉ करने के बाद में फिर हमको यहाँ पे एक पंचायती राज का कोई भी क्वेश्चन आए, एक टाइमलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फेज जोन डायग्राम है। ये आपको ड्रॉ करना ही करना है। 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 1953
नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1957, बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट 1959, 2 अक्टूबर नागौर राजस्थान में पहला पंचायती राज स्टैब्लिश किया गया। उसके बाद में आप सीधा आ जाओ 1967, अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद सीधा आ जाओ 1986, जीवी के राव कमेटी। देन 87, एल एन सिंघवी। अगेन 87, थुंगन कमेटी। Then 64th Constitution Amendment Act, and then your 73rd Constitution Amendment Act 1993. Okay, this fishbone diagram you have to mention, and you have to map it also, figure evolution of PRI in India. ठीक है, ये डायग्राम आप ढंग से देख लीजिए। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद में फिर आपको उस पे आना है फीचर्स क्या क्या थे, और फीचर्स के साथ में ही उसकी वीकनेस लिखते जाए नीचे। सपोज ग्राम सभा लिख रहे हो तो ग्राम सभा की वीकनेस की द पावर हैज नॉट बीन डिफाइंड। ओके, सिमिलरली आप लिख रहे हो कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, तो इसमें आप इसकी वीकनेस लिख दो। स्टेट फाइनेंस कमीशन तो उसकी वीकनेस लिख दो, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर तो उसकी वीकनेस लिख दो, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ फंड उसकी वीकनेस लिख दो, ठीक है। तो आप साथ साथ में फीचर्स डालो, साथ साथ में उसकी वीकनेस डालो और बोलते जाओ कि हेंस इट इज अ हाफ बेक्ड केक। अब उसके बाद में आप जो इसके वे फॉरवर्ड डालो। वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो भी केरला मॉडल हो गया, ओम्बुड्समैन एग्जांपल्स के साथ में, नॉर्थ साउथ डिवाइड का तुम डायग्राम यहाँ बना सकते हो पंचायती राज में कि किस तरीके से ये यहाँ पे बैड पंचायती राज और यहाँ पे गुड पंचायती राज, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम तुम बना सकते हो। और उसके बाद में फिर यहाँ पे तुम क्या करना है, मणिशंकर कुछ कीवर्ड्स डालने। मणिशंकर कमेटी की रिपोर्ट, मणिशंकर कमेटी के कुछ कीवर्ड्स की किस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने बोला कि बैड पंचायती राज इज वर्स्ट देन द नो पंचायती राज, और उन्होंने बोला कि हाउ देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पंचायती राज सिस्टम, और उन्होंने बोला कि देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ करप्शन रेदर देन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, इसके अलावा तो ये सारी चीजें हमको डालनी है। देन कमेटीज की रिकमेंडेशन क्या क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है यार। और दैट शुड बी एनरिच्ड विद द वैल्यू एडेड थिंग्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स, कमेटी रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड वेरियस कीवर्ड्स क्लब्ड विद द थ्योरी। ओके, सो देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट अ गुड आंसर। अब और फर्दर डिटेल के लिए मॉडल आंसर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट इट वुड बी correct to say that in India people do not vote their caste, rather they cast their vote? क्वेश्चन आपने पहले भी सुना होगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि how whether it is correct to say that in India people do not cast their vote, rather they vote their caste. Explain the reference of two general election, ठीक है। तो कास्ट बेस्ड क्वेश्चन है यार, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेना, ठीक है। तो इंडिया का बोल रहा है कि इन इंडिया पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट, रेदर दे वोट देयर कास्ट। ओके, सो बेसिकली ये जो लाइन है, दिस डिफाइन द क्वांटम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द रोल द कास्ट प्ले इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इस पे तुमको ये क्वेश्चन कास्ट में लगातार 2 बार बीपीएससी पूछेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आपको यहाँ पे थ्योरी से स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन वेरियस आइडेंटिटीज लाइक कास्ट, रिलीजन, रेस, एथनिसिटी, ठीक है। इट इज इट एक्सक्लूड द रीजन, इट इंक्लूड द पैशन एंड हेंस लीड्स टू वायलेंस। ओके, उसके बाद में आपको दिखाना है किस तरीके से रोल ऑफ कास्ट में, अब यह बोल सकते हो कि रजनी कोठारी ने ये बात बोली है। इसके अलावा कास्ट बिकेम द मोज़ेक ऑफ इंडियन सोसाइटी, क्रिस्टोफर जोफरलॉट। इस अगेन इसमें आपको जो स्कॉलर कोट करने हैं, जो कि फोर अगेंस्ट या अगेंस्ट क्रिस्टोफर जोफरलॉट, योगेंद्र यादव, रजनी कोठारी, सीपी बामरी, आशुतोष वार्ष्णेय, ठीक है, पॉल ब्रास, आंद्रे बेते, प्रताप भानु मेहता। ये सारे स्कॉलर्स के व्यूज आपको इसमें डालने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखाना है कि 2 जनरल इलेक्शन का यूज करके, पिछले जनरल दोनों जो जनरल इलेक्शन में आप जो एग्जांपल लेके देखो कि किस तरीके से कास्ट बेस्ड जो कास्ट ने पॉलिटिक्स पे रोल प्ले किया है अपना जो है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में यार आपको ना मतलब एक फिलोसॉफिकल आंसर लिखने के लिए कीवर्ड, स्कॉलर्स, कोट्स, स्कॉलर्स के कोट्स और कुछ बुक्स को कोट करना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट का रोल ऑफ कास्ट किस तरीके से स्ट्रेंथन किया डेमोक्रेसी को, किस तरीके से डेमोक्रेसी को वीकेंड किया है, रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, इन सब के व्यूज आपको डालने पड़ेंगे, तभी आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, define the concept of judicial review, critically examine the role of judiciary towards the strengthening the rule of law in the country. So the question is define the concept of judicial review. Okay, critically examine, the next part is critically examine the role of judiciary towards strengthening the rule of law in the country. Critically examine the role of judiciary towards strengthening the rule of law in the country. So आपको 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहला है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो यार ये जुडिशियल रिव्यू आपको एक अच्छा सा इंट्रो डालना है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ इंट्रो, और अगर किसी का कोड डाल सकते हो तो वो और ज्यादा बेहतर है। अमेरिकन केस जो है, अमेरिकन केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उस केस का नाम मैडबरी वर्सेस करके कुछ केस है, आप याद कर लेना एक बार, अमेरिकन केस, जिससे कि जुडिशियल रिव्यू की शुरुआत हुई। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू के कंपोनेंट क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 131, 132, 133, 136, 137, 142, 143, 226, व्हाट आर द मेजर आर्टिकल रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसके बाद में आपको डालना है कि जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है, एक डेमोक्रेसी के लिए। देन उसके बाद आपको डिफाइन करना है कि जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल ओवररीच और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या क्या है, ठीक है। देन उसके बाद आप दिखाओगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या था अपना, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ जुडिशरी टुवर्ड्स द स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि भाई जुडिशरी ने किस तरीके से रोल प्ले किया स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री, कि आपको फिर यहाँ पे फेसेस दिखाने हैं, पैसिव जुडिशरी, एक्टिव जुडिशरी, किस तरीके से, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द जुडिशियल एक्टिविज्म, देन डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ व्हाई द स्कॉलर्स लाइक Aparna Kundu says that ki if there would not be any basic structure of doctrine, Indian democracy could have turned into the authority or tyranny of the elected representative. Okay, तो आपको दिखाना है किस तरीके से जुडिशियल रिव्यू ने जुडिशरी ने इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। उसके बाद आपको ये भी दिखाना है किस तरीके से एक्टिविज्म ने जो है एक्टिविज्म एंड ओवररीच हैव डिस्टर्ब्ड द बैलेंस ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंस मैकेनिज्म, तो वो भी आपको उसके साथ में दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, जुडिशियल रिव्यू डिफाइन करना है, जुडिशियल रिव्यू एवोल्यूशन कैसे हुआ, जुडिशियल रिव्यू का इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, देन क्रिटिकली एग्जामिन में हाउ स्ट्रेंथन, हाउ वीकन द डेमोक्रेसी एंड व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। एंड अगेन इसमें स्कॉलर्स कोट करने हैं आपको, रिलेटेड स्कॉलर्स, और वो कंटेंट हम आपको ग्रुप पे सारा दे रहे हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द पर्टिकुलर टॉपिक। अगर इफ यू विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देन आई विल हैव टू एक्सप्लेन द होल टॉपिक व्हिच इज नॉट पॉसिबल हियर एज दिस इज द डिस्कशन। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यार, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड हाई चांसेस की क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू व्हाट एक्सटेंट इट वुड बी एप्रोप्रिएट टू से दैट ऑरबिंदो घोष इज द प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ऑरबिंदो घोष को प्रॉफिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म क्यों बोलते हैं, ठीक है भाई। यार इस क्वेश्चन पे आपको अरविंदो घोष पढ़ के जाना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूछा जा सकता है। अरविंदो घोष पे अगेन एक बहुत शानदार सा इंट्रोडक्शन, इंक्लूड ऑफ स्कॉलर के भाई फलाने स्कॉलर ने अरविंदो घोष के बारे में इस तरीके से डिफाइन किया है, आपको ये चीजें तैयार करके जानी पड़ेंगी। जैसे कि अरविंदो घोष वाज वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव एंड सिग्निफिकेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेनेसांस एंड इंडियन नेशनलिज्म। डॉक्टर राधाकृष्णन कॉल्ड हिम द मोस्ट अकम्पलिश्ड मॉडर्न इंडियन थिंकर। अब इनके नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म पे थोड़ी डिस्कस करना है। देन अरविंदोज व्यू ऑन नेशनलिज्म, कि किस तरीके से ही वाज इंस्पायर्ड बाय द व्यूज ऑफ हर्डर, ओके, नीशे, कल्चरल नेशनलिज्म के व्यूज क्या क्या हैं, वो किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं
मॉडरेट्स को कि भाई वो बोलते हैं कि इंडिया इज द नेशन इन द मेकिंग, वो किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कॉलोनियल थिंकर को जो बोलते हैं कि इंडिया इज मेयरली अ geographical identity, not a nation. So basically, Aurobindo Ghosh came forward, gave a very strong theory of nationalism by criticizing the existing theory given by the moderate and the colonialist. Okay, he said that India is not a nation in the making. India has been a nation since the ancient time. Okay, and it will be for the welfare of the humanity if the India as a nation become a free soul. ओके वो यहाँ पे एक कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं और अरविंदो घोष वाज इंस्पायर्ड बाय द न्यू वेदांतिक आइडियाज ऑफ विवेकानंद एंड बंकिम चंद्र चटर्जीज कॉन्सेप्ट ऑफ भारत माता. ओके इसके अलावा फिर वो रिलीजन से कनेक्ट करते हैं कि द वे वी वर्शिप द रिलीजन वी शुड वर्शिप द नेशन. ठीक है, बेसिकली वो स्वराज की बात करते हैं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं यहाँ पे. तो वो बेसिकली ही वाज टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म, सो टू रेज द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल, टू अराउज द पैट्रियोटिक फीलिंग सो दैट पीपल विल स्टार्ट and protesting against the Britishers. So ultimate purpose is to throw away the Britishers from the India, and in that pursuit he gave a very strong theory of nationalism. ठीक है, उनका ये मतलब है कि नेशन एक कोई जोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, नेशन इज एन आइडिया, नेशन इज एन स्पिरिट, नेशन इज इन द डिवाइन. ओके, और इंडिया का जो एज ए नेशन है वो पूरे विश्व के लिए अच्छा है, बिकॉज द डिवाइन नाउ हैज चूजन इंडिया टू स्प्रेड द आइडिया ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी toward the global level. Okay, तो ये this was how his idea of nationalism. अब हमको यहीं पर नहीं रुक जाना है. जैसा कि मैंने बोला कि 50 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्रिटिक करना है और कंपेयर करना है ऑरबिंदोज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म विद द टैगोर, विद द गांधी, ओके, एंड विद द पटेल के कॉन्सेप्ट के नेशनलिज्म के साथ में या अम्बेडकर के नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट के साथ में. ठीक है, इसके बाद आपको क्रिटिक भी करना है. क्रिटिक कैसे करना है कि यार कल्चर को, रिलीजन को नेशनलिज्म से कॉन्सेप्ट से लाना इज अल्टीमेटली ही इज पेइंग द वे और पेविंग द सीड ऑफ द कम्युनलिज्म. डिफरेंट स्कॉलर्स ने इस पे व्यूज दिए हैं. ठीक है, इसके बाद में फिर कंक्लूड करना है कि किस तरीके से उनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल एंड द एवोल्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म. तो दैट वाज, इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को डील करना है. तो क्या बताया मैंने, इंट्रो अच्छा सा डालना है, उसके बाद में ऑरबिंदो का नेशनलिज्म का आइडिया डिस्कस करना है, उसके बाद में कंपेयर करना है विद टैगोर, गांधी, देन क्रिटिक करना है, स्कॉलर्स कमेंट्री लिखनी है, कीवर्ड्स डालने हैं, देन कंक्लूड करना है पॉजिटिव नोट पे. सो दिस इज हाउ वी विल डील विद दिस क्वेश्चन. सो द लास्ट क्वेश्चन इज डिस्कस whether the coalition politics has led to different pattern on federalism in India. So again very important question. और पिछले 2 क्वेश्चन हुए आपने देखा कोलिशन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है यार. तो आप प्लीज अच्छे से जो भी कंटेंट, जो भी शॉर्ट नोट्स, जो भी कंटेंट हमने टेस्ट सीरीज के साथ में आप लोगों को प्रोवाइड किया है, दैट इज मोर देन इनफ. आप उसको पढ़ के चले जाइए, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है. सो द क्वेश्चन इज डिस्कस वेदर कोलिशन पॉलिटिक्स हैज लेड टू अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. सो द क्वेश्चन इज कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो यार, समझो कि कोलिशन पॉलिटिक्स जो है हैज लेड टू अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया. ठीक है, तो डिस्कस करने के लिए बोल रहा है अपन को, ये कोलिशन पॉलिटिक्स हैज लेड टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म. तो पहले तो अपन के दिमाग में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म होते क्या है. ठीक है, कोलिशन पॉलिटिक्स क्या है, स्टार्ट करेंगे. इंडियन द फाउंडिंग फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द मल्टी पार्टी सिस्टम. एज अ रिजल्ट the emergence of coalition politics emerged after the decline of the Congress system. ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे कि किस तरीके से evolution of party system, evolution of coalition party system हेडिंग डालेंगे. फिर हम वहां पे दिखाएंगे इंडिपेंडेंस 1967 कांग्रेस सिस्टम, 1967 से 77 डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, 79 जनता दल गवर्नमेंट कोलिशन. ठीक है, इस तरीके से हम डिफरेंट फेसेस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, कोलिशन का राइज कैसे हुआ 1992 टू 2014 कोलिशन कह रहा था. इसमें भी सब पार्ट कर देंगे कि 1999 तक अनस्टेबल कोलिशन, 1999 से 2014 तक स्टेबल कोलिशन. ठीक है, उसके बाद में फिर सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम, स्वासवाल से जिसको बीजेपी सिस्टम बोलते हैं. तो दिस इज वेरी शॉर्टली हमको डिस्क्राइब करना है कि इमरजेंस ऑफ कोलिशन कैसे हुआ. उसके बाद में यार डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म में क्या समझते हो आप लोग, डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म कैसे कैसे हुए, इस चीज के बारे में हमको डिस्कस करना है. ठीक है, तो डिफरेंट पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म
with respect to the coalition politics. जैसे कि पहले क्या था अपना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है नहीं, मॉरिस जोन्स, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ठीक है, केसी वियरे, क्वासाई फेडरलिज्म, ठीक है, एल्फ्रेड स्टीफेंस, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक है, प्रोफेसर एमपी सिंह, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड नाउ प्रोफेसर बलवीर अरोड़ा, competitive cooperative federalism. So these are the different pattern of federalism emerged over a period of time. अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इसके सामने बस ये लिख देना है कि भाई कोएलिशन पॉलिटिक्स में किस तरीके से इमरजेंस हुआ, कब कब कैसे हुआ, शुरुआत में क्या था, उसके बाद में किस तरीके से ये सारे पैटर्न ऑफ फेडरलिज्म जो है आपको लिंक करके डिस्कस करना है कोएलिशन पॉलिटिक्स के साथ में, ठीक है, कोएलिशन पॉलिटिक्स को डिस्कस करना है और उसके साथ में उसने किस तरीके से फेडरलिज्म को इम्पैक्ट किया है यहाँ पे, और उस चीज को आपको ढंग से जो यहाँ पे डिस्कस कर देना है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के साथ में। और इसमें अगेन आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, स्कॉलर्स व्यू, कमेटी रिकमेंडेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, वे फॉरवर्ड स्कॉलर्स के कोर्ट के साथ में करना है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट अ गुड आंसर इन द इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। और एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसी स्ट्रक्चर को आप फॉलो करना है आप जब GS2 के पॉलिटी सेक्शन को डील कर रहे हो। आप इस चीज को बिल्कुल मत डरिए कि नंबर कम मिलेंगे, काट देगा। ऑप्शनल की लैंग्वेज को पूरे तरीके से आप यूज करिए GS पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन में, ट्रस्ट मी नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। सो होपफुली वी हैव कंप्लीटेड द discussion of the first test, okay, and I think that this will definitely help you in enriching your approach toward the answer writing, okay. So see you in the next test, and our next test will be we are having the 6th test. This is the first test. Our next test will be on the section 2 part A part B, which is international relation and theories, okay. So till then keep revising, keep writing. See you, bye bye, all the best, thank you.